चलिए आप लोग भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया। Okay, so dear students, we will continue with the structure of atom, 11th class topic. So far we had seen principal quantum, there are 4 quantum numbers. Principal quantum number denoted by small n, azimuthal quantum number denoted by L, magnetic quantum number denoted by M. Today we will take spin quantum number and then we will again go back to Aufbau principle. Okay, so spin quantum number is fourth quantum number which accounts for the spin of electron. It accounts for spin of electron in two opposite directions. So it accounts for spin of electron in opposite directions. That is in clockwise and anti-clockwise direction. Clockwise and anti-clockwise direction. It is denoted by H. तो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर आ गया स्पिन क्वांटम नंबर and it is denoted by small s. So opposite direction means in clockwise direction and in anti-clockwise direction. Electrons are represented by a arrow, half arrow we can say. Clockwise is upward arrow and anti-clockwise is downward arrow. So this represents one single electron. So clockwise once again shown by upward direction and anti-clockwise shown by downward direction. Yesterday we had seen electronic configuration. In case of electronic configuration, let us take nitrogen 7. We have 1s2, 2s2 and 2p3. This is what the electronic configuration. This 2p3 is split into 2px, 2py and 2pz. So 1s2, 2s2. This is the electronic configuration for nitrogen. हमने क्या किया, ये 2p3 को स्प्लिट कर लिया px, py, pz और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि जितने सब ऑर्बिटल्स है इनको पहले फिल करना होगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू करते हैं. तो ये 1s2, ये देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है. 1s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन. This represents number of electrons. So number of electron here 1s2, 2 electron, one clockwise, another anti-clockwise. 2s2 again 2 electron, one clockwise, another anti-clockwise. Now comes to this 2px1, 2py1, 2pz1. Each will contain one electron in the same direction. तीनों भी क्लॉकवाइज रहेंगे या तीनों एंटी क्लॉकवाइज. आप इस तरह से नहीं लिख सकेंगे. अगर आपने ऐसा लिखा तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे या फिर ये दोनों पेयर हो जाएंगे. अब सेम साइन रहेगा तो रिपेल करेंगे, वैसे कि वैसे अपनी जगह पे रहेंगे. अपोजिट साइन वाले इलेक्ट्रॉन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड विल रिमेन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेयर. वी नीड हियर सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखना है हमको. तो we will take
either in clockwise all the three or all the three in anti-clockwise direction. Both are valid, but we cannot have this kind of arrangement, we cannot have this kind of arrangement, we cannot have this kind of arrangement, है ना? ये सब रॉन्ग है। तीनों या तो क्लॉकवाइज या तीनों जब भी सिंगल रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके साथ जैसे पेयर आ जाती है, हम कंसीडर करें ऑक्सीजन O8 1s2 2s2 2p6, हो 2p6 नहीं 2p4 2p4 को बेटा क्या लिखेंगे 2px 2py 2pz। इसी पे फोकस करते 1s2 2s2 ये तो पता ही है अपने को वैसे ही रहने वाला है, तो 2s2 कैसा होगा बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 में क्या होगा बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 2p4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना? और एक ऑफ प्रिंसिपल है, एक हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो ये तीनों रूल से सारे ये फंडे आपको सामने आने वाले। तो बेटा कर 2p4 लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो पेयरिंग चालू कर देगा। तो पेयरिंग आप यहाँ पर 2px2 लिखेंगे, 2py1 लिखेंगे और 2pz1 लिखेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो बात चल रही थी स्पिन क्वांटम नंबर की। इट अकाउंट्स फॉर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction means one will be in clockwise direction, another will be in anti-clock. अब clockwise direction यानी ऐसा होगा और anti-clockwise direction means इस तरह से होगा। तो clockwise को हम ऐसा या anti-clockwise को ये एरो में नहीं दिखा के upward यानी clockwise, downward यानी anti-clockwise direction. Now each electron in spin quantum number has a value of half 1/2. Each electron will have 1/2 value of spin. जैसे हमने देखा था azimuthal quantum number L is what 0 to n-1, याद आ रहा होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या देखा था -L 0 to +L, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दो ही पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रहेगा वो +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो -½ दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्लॉकवाइज +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ तो ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई। और स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट इज व्हाट द रोल ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। पेयरिंग बाद में होता है, पहले ईच सब ऑर्बिटल विल बी फिल्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन and if more electron available then pairing will be done. Okay, so this is about spin quantum number. जैसे कल हमने एक बड़ा सा टेबल बनाया था, आज फिर से एक दो वैल्यू के लिए लिखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये फिर स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए जी, के L is n is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0, but spin quantum number में +½ and -½ because it is having 2 electrons. एक s ऑर्बिटल यानी ये L 0 है यानी कौन सा ऑर्बिटल हो गया s, और s ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। So when 2 electrons are there, तो इसके लिए +½
एन माइनस हाफ। सही है। नेक्स्ट के बाद के एल 2 0 एंड 1। 0 क्या होगा s ऑर्बिटल, 1 क्या होगा p ऑर्बिटल, m क्या होगा 0 होगा और p ऑर्बिटल में क्या होगा -1 0 एंड +1। यहां समझना है आज आपको अच्छे से। -1 0 +1। अब स्पिन कैसा होगा इसका प्लस हाफ, अब कॉमा बाजू में लगाता हूं उसके माइनस हाफ। -1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, +1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये चारों क्वांटम नंबर आ गए आपके सामने और ये चारों क्वांटम नंबर से हम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे। बट दिस 4 quantum number with the support of 3 more laws, we will take one more, K, L, M. M is 3, L is 0, 1 and 2. सही है। 0 will remain 0, this will get plus half minus half। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ माइनस हाफ। 1 वाले में क्या आएगा -1 0 +1। सही है। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। अब 2 आ गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2 और हर एक के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। So these are the 4 quantum numbers together and now we can very well distribute electrons. This is what distribution of electron. कैसे distribution हो रहा है यहां पर मैं अलग से लिखता हूं, आप देखेंगे प्लस हाफ माइनस हाफ यहां लिख देते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं, क्या लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे आप, इसको देख के क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2। सही है। फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल उसमें 2 स्पिन है और वो आगे 2 1s2। नेक्स्ट कहां तक रहेगा बेटा, उसको पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं, यहां तक के है ना। हाँ जी। नेक्स्ट वाला इसमें क्या लिखेंगे, ये देखिए ये मैं कट कर रहा हूं इसको और क्या मिलेगा यहां से 2s2। आगे बोलो कट करना है अपने को, आगे बोलो कट करना है 2p6 नहीं, अब हम उसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं ना 2px2। सही है। यहां से आएंगे, ये देखिए जो कट कर रहा हूं मैं ब्लू इंक से 2py2। हाँ फिर से लास्ट वाला ये इसके लिए लास्ट क्या लिखेंगे 2pz2। टोटल इलेक्ट्रॉन 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ के टोटल इलेक्ट्रॉन 18। तो ऐसे डेवलप होगा हमारा। चलो यहाँ भी बोल दो बेटा, यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, आप बोलेंगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 सॉरी आई एम सो सॉरी 3s2 देन 3p। अभी 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि स्प्लिट हम d को करने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया 3s2, ये 3p6। अब क्या आएगा 3d10, तो इसको लिखते हैं 3dxy2 3dyz2 3dzx2 3dx2 y2 2 and 3dz2। तो ये हो गया थर्ड वाले शेल का
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अब हम चारों क्वांटम नंबर और एक फंडामेंटल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिल गया हमको। नाउ आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज 4 क्वांटम नंबर्स, now we will move back to yesterday's discussion that was Aufbau principle. तो प्रीवियस क्लास में थोड़ा सही हुआ था, फिर टाइम आउट हो गया था, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज फिर से पूरा शुरुआत एक बार। Once again we will take the entire discussion of Aufbau principle. Aufbau principle. Aufbau principle. This is the principle suggesting filling of electron in various orbitals with the increasing order of their energy level. कि जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, यानी लोअर एनर्जी को पहले और हायर को बाद में, सिंपल है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, वी विल कीप ऑन फिलिंग दोज ऑर्बिटल with the increasing order of energy level. So we will make here those energy level. यहां बनाते हैं, वहां लिखने के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये 1s, then 2s, 2p, थर्ड शेल में क्या होगा 3s, 3p, 3d, फोर्थ शेल में क्या होगा 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ में अब ऑर्बिटल तो 4 ही यूज करेंगे हम, 5s, 5p, 5d, 5f। एक और लिख लेते हैं 6s, 6p, 6d, 6f। ठीक है, इनको डायगोनली कट कर देते हैं। आफ्टर कटिंग देम डायगोनली कनेक्ट देम, कनेक्ट करते हैं एरो से। तो ये एरो तो इस तरफ आ गया, कनेक्ट किया इसको। सो गोइंग अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, अगेन बॉटम से ऊपर, देन डाउनवर्ड, बॉटम से फिर ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, देन सेम डाउनवर्ड। Likewise, we will have this filling of orbitals. चलिए जी, अब आप क्या बोलेंगे? Read this and we will write the entire filling of electron. ठीक है, चलिए जी, पूर्णांक बोलेगा, जल्दी बोल चल। हाँ, अब दिख नहीं रहा है क्या? तो फिर बोलना तो। हम्म 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। अच्छा, ऐसा ही है क्या? एग्जैक्ट देख लो, क्योंकि 3d और 4s में फर्क है ना। तो यहां से देखेंगे बेटा, 3 थर्ड आ गया, ये 3s डाउन गया, अब ये ऊपर चढ़ा, कहां पर आ गया 3p, 3s के बाद 3p इज ओके, 3p के बाद 4s आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है। तो यहां पर ये 4s2, 3d10। अब क्या आ जाएगा 4p6, नेक्स्ट बोलेंगे मुझे 5s2, नेक्स्ट बोलेंगे 4d10, नेक्स्ट बोलेंगे 5p6, नेक्स्ट हाजी 6s2, 4f14, नेक्स्ट 5d10।
आगे बोलेंगे 6p6, ओके 6p6 तक के लिखते हैं हम लोग, है ना। 6f भी दिया हुआ है, ठीक है, वो जितना बढ़ाना चाहे अपन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो एक हमें क्या है, कैसे आइडिया मिल रही है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है और वो एक्सेप्शन क्यों है, ये भी अपने को देखने का है ना। तो वो एक्सेप्शन हमको दिख रहा है एक यहाँ पर, और दूसरा दिखेगा 4d10, 3d और 4p में भी हम लोग एक एक्सेप्शन देखेंगे। अभी दो को पहले फोकस करते हैं। 5s2 5s2 4d10, तो पहले 5 आ गया, बाद में 4 आ रहा है ना। तो हमने तो क्या करना था कि 1 2 3 4 ऐसे फिलिंग होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब होता है। पहले 5 आ जाता है, बाद में 4 आता है, पहले 4 आता है, बाद में 3 आ जाता है, और इसको भी पढ़ेंगे हम, बिकॉज दिस अबव प्रिंसिपल गवर्न्स बाय अ रूल वी कॉल एज n+l रूल। n हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमें पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ध्यान से वैल्यूज को मुझे बोलेंगे आप। सो लेट अस फोकस व्हाई वी गेट 4s2 बिफोर 3d एक्सेप्शन। 4s2 एंड 3d10 ये बाद में, तो इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन लिखने में अभी मतलब नहीं है अपने को। 4s2 पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है, तो इसमें n और l की वैल्यू बोलेंगे ना मुझे, बता दीजिए मुझे n क्या लिखूं यहाँ पर। 4 प्लस s कितना है, 0। अरे बेटा n प्लस l बोलो ना, तो s यानी क्या होता है, 0 होता है उसकी वैल्यू, सही है। तो n प्लस 0, तो n की वैल्यू कितनी है, 4। 4 प्लस 0 यानी ये 4 हो गया टोटल n प्लस l। इसका n प्लस l कितना होगा, 3 प्लस d यानी कितना होता है, 0 1 2 2 होता है या 3 होता है, पक्का 2 लिख दे, ये 2 लिख दिया, तो टोटल कितना हो गया 5। n प्लस l रूल में पहले 4 आएगा, बाद में 5 आएगा, इसीलिए पहले 4s आ रहा है, बाद में 3d आ रहा है। आया ध्यान में। एक और एग्जांपल यहां से लेते हैं हम लोग, ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। 5s पहले आता है, 4d बाद में क्यों आता है। 5s 5 प्लस 0 इज 5, हियर 4 प्लस d यानी कितना, ये अभी 2 लिखा था हमने, 4 प्लस 2 इज 6, तो फर्स्ट क्या फिल करेंगे 5s और बाद में 4d। एक्सेप्शन समझा। अब एक और एक्सेप्शन देखेंगे, अब इसको, और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, 3d और 4f 4p, 3d एंड 4p, 3d और 4p, इसमें n प्लस l का रूल लगा के देख लो। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। 4p में 4 प्लस p का कितना है 1, ये भी 5, अब दोनों 5 आ गए। समझा क्या, दोनों 5 आ गए, तो कौन से सिलेक्ट करेंगे, नहीं, जो लेवल पहले कम रहेगा, n की वैल्यू शॉर्ट, स्मॉलर n की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही बनता ना, तो इसमें 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप पहले दोनों अगर 5 है तो n की वैल्यू लोएस्ट काउंट करेंगे। n की वैल्यू 3d में 3 है और 4p में n की वैल्यू 4 है, तो आप कौन से शेल में जाएंगे,
थर्ड शेल में पहले जाएंगे, फोर्थ शेल में बाद में जाएंगे, पहले थर्ड फ्लोर में जाएंगे, बाद में फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल है, 5 5 है, n प्लस एल रूल क्या है, 5 n 5 दोनों में, लेकिन n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो जो लोअर n की वैल्यू है दैट वुड बी टेकन। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख लो, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, है क्या है? अच्छा, ये टेबुलर फॉर्म में है क्या, वो देख नहीं पाया था मैं। हाँ, अरे तुम घर जाके थोड़ी ना लिखते हो, फिर ग्रुप पे भी भेज दो, वो सब सही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 3 एग्जाम्पल लिख लो बेटा। ये जैसा मैंने समझाया है ये ज्यादा कन्वीनियंट है बजाय वो टेबुलर फॉर्म के, वो टेबुलर फॉर्म में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कितने मिनट बाकी होंगे अभी? बहुत टाइम है। अच्छा ठीक है ना। 2 मिनट बाद आएगी। आ गए संदेश आते हैं, 10 मिनट वाले आते हैं। तो ये क्वांटम नंबर ये रहने दूं क्या वो अभी, तो इसको मिटा के मैं आगे का लिखूं, समझ तो गया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपके लिए। तो इसमें एक ऐसा है कि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल है बट 3D पहले आएगा, 4P बाद में आ जाएगा। हाँ जी, रब कर दूं? अरे 1:2 इज लेस देन, ऐसा होना था ना। हाँ, क्या बोला क्या बोला अनिरुद्ध, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला रहना चाहिए। अच्छा, पैसे की भाषा जल्दी समझती है ना, इस दुनिया में लोगों को पैसे की कोई भी चीज समझानी है। देखो अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, हाँ 100 रुपए है, इमेजिन कर, तो रुपए पैसे की भाषा जल्दी समझती है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो रूल क्या बोलता है कि Pauli's exclusion principle. What this rule suggests, no two electrons can have all the four quantum numbers identical. कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के हो ही नहीं सकते इक्वल, कि सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। Set of 4 quantum number cannot be same for 2 or more electron.
each electron has its own set of 4 quantum numbers. ये भी बोल सकते हैं each electron have its 4 quantum number in a single set. जैसे हर इलेक्ट्रॉन के अपने 4 क्वांटम नंबर्स के अलग रहेंगे, वो रिपीट किसी और के साथ होगा नहीं. That means every electron is individual. It is having out of 4 एक तो भी अलग रहने वाला है क्वांटम नंबर. चारों के चारों दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं रहेंगे. तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल हीलियम लेते हैं. हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए. अब देखने में तो लगता है कि सब कुछ तो सेम है. फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एस ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है. लेकिन यहां बॉक्स में क्या लिखा है मैंने? स्पिन अलग अलग हो गई ना. तो अगर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लिखें हम, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सही है, इसका क्वांटम नंबर का सेट बोलेंगे मुझे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा? 1 0 0 प्लस हाफ. स्पिन क्वांटम नंबर है ना फोर्थ. नेक्स्ट इसी का सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, बट स्पिन क्वांटम नंबर इज माइनस. हो गया. ये दोनों आइडेंटिकल हुए क्या? नहीं. दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट. हीलियम, they belong to the same energy level 1, they belong to the same orbital s, they shows the same magnetic moment, but finally they get differed in terms of spin. स्पिन एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज होगा. सही है. तो ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आ गया ध्यान में? आप किसी भी दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो. अभी आपने ये फर्स्ट शेल लिया, सेकेंड शेल यानी ये एल वाले, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. हीलियम तो ले लिया 3, किसका? हीलियम, नियो, सोडियम. हम लोग बोरॉन का ले लेते हैं, बोरॉन 5. ठीक है. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. आउटर मोस्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के और ये 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का. अब ये तो सिंगल है, ये तो अपने आप में अलग ही रहने वाला है. आप इसके लिए मुझे 2p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर बोलेंगे मुझे. 2 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे. यस, -1 0 प्लस 1. उसमें से सिर्फ एक ही है p. यहां पर px मानिए ना इसे आप, तो -1 हो गया. अब स्पिन का है, एक ही है, तो प्लस हाफ. अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन. चलिए बोलिए फिर से 4 सेट बोलिए इसका. 2 s है 0, s है 0 प्लस हाफ. फिर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन 2 0 0 माइनस हाफ. So no 2 electron can have the 4 quantum number identical. That is Pauli's exclusion principle. हो गया. 5 मिनट और है अभी हमारे पास.
हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझाना था मुझे, वो इम्पोर्टेंट। वो नेक्स्ट है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। ओके, वही है जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो वैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, एंड इफ मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल देन द पेयरिंग विल बी डन। जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा अभी, फ्लोरीन का F9। What does Hund's rule of maximum multiplicity says? That in the valence shell, आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा वैलेंस शेल, क्योंकि इनर शेल तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जो इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं या जो हमारे क्वेश्चन के लिए है वो है आउटर मोस्ट शेल। द ऑर्बिटल और द शेल विच इज अवेलेबल फॉर क्वेश्चनिंग इज द आउटर मोस्ट। इनर तो वैसे भी कुछ काम के नहीं आते, इनर वाले क्या है, अंदर ही रहते, वो बॉन्ड बनाते नहीं है। जो बॉन्ड बनेगा आउटर मोस्ट से बनेगा, टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आएगा, इनर में तो जाएगा नहीं। तो जो आउटर मोस्ट वाले